हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर वीडियो ऑफ योर सब्जेक्ट एफपीटी फाउंडेशन इन बिजनेस टेक्नोलॉजी. So in this lecture or in this video, we are going to start with our very first chapter, okay, and we are going to discuss about some basic concepts. बहुत मजे मजे के concepts हैं and some basic terminologies जो आपको during this subject study काम आएंगी. Plus, after this, once you plan to start your own business, so you will be having a very important and base foundation of what is business and how we can start a business. All right. So let's just quickly start without wasting further time. So it is very important, as the subject itself has a name, Foundation in Business and Technology, right? So it is very important for you guys to understand what is the definition of a business. What is actually a business? Okay. So we can say that anything, any activity, which activity, any legal activity. Okay, it is very important for you guys to understand that a business shall always be a legal activity. Any legal activity which is done with the perspective of profit, but with equal chances of loss. It is very important for you guys to understand that business is a legal activity जो कि हमेशा प्रॉफिट की नीयत से की जाती है, राइट? बट उसमें लॉस मेकिंग चांसेस हमेशा होते हैं. आई हैव आस्क्ड numerous students a number of times कि what they think a business is, so they always tell कि business is something जिसमें हमें profit होता है. No, that is true, right? At some time that was true, but now, or I will say the real definition of business is कि yes, it's correct कि एक business जो है वो profit seeking और entity होती है, but उसको loss भी हो सकता है. तो you need to understand कि business के definition में loss को incorporate करना it's very important, right? So business, any legal activity which is done with a perspective of profit, but with an equal chances of loss. There are two type of businesses. ओके. बिजनेसेस जो हैं हम ब्रॉडली दो टर्मिनोलॉजीज में क्लासिफाई कर देते हैं. उन टर्मिनोलॉजीज को समझने से पहले आपको एक और वर्ड को समझना की जरूरत है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन. द वर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को समझने के लिए हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री. ऑर्गेनाइजेशन आप मुख्तलिफ लोगों से मिलकर बनती है, राइट? मैं दोबारा बोल रहा हूं. ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीपल दैट वर्क टुगेदर. सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सोशल अरेंजमेंट. आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोशल अरेंजमेंट होती है. व्हाट डज द वर्ड सोशल अरेंजमेंट मीन? दैट group of people, group of guys, group of people work together. ओके. जब वो एक साथ काम करते हैं तो वो क्या अचीव करते हैं? वो कलेक्टिव गोल अचीव करते हैं. दे हैव अ कलेक्टिव गोल. फॉर एग्जाम्पल, द गाइस जो मेरी वीडियो देख रहा है, मेरा और उसका गोल ये होगा कि भाई हमने एक टाइम पे इस सब्जेक्ट को क्लियर करना है एंड इसका एग्जाम पास करना है. सो दिस इज आवर कलेक्टिव गोल, राइट? सो कलेक्टिव गोल का मतलब होता है कि जब ज्यादा लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उनका एक खास मकसद बन जाता है, एंड दैट मकसद, दैट एम इज योर कलेक्टिव गोल. देखो, when a number of people will work together and they will work to achieve a particular goal, a collective goal, a common goal, so they will abide by some rules and regulation. Okay, whenever
people work together, whenever people are in a social arrangement and they work for collective goals, so they will abide by some rules and regulation, they will follow some rules and some regulation. Okay, so these three portions will make the definition of an organization. So I'm repeating again, organization is basically a social arrangement where different people work together to achieve a collective goal, a common goal, under, or you can say by following some rules and regulation. So that is organization. Now, when we combine business organization, so business organization is basically, now I'm going to combine the both definitions. Okay, business organization, any legal activity done by group of people, or I can say done by a social arrangement, done by a group of people, whatever you want to say, that's nothing to worry about. By group of people that work together to achieve collective goals and abide by some rules and regulations. Collective goal refers to profit making, but with, sorry, but with an equal chance of loss. Okay. So what I just did, I just combined both the definitions. Okay, आप दोनों definitions समझ लो, that is totally fine. आप दोनों को combine कर लो, that will be the business organization definition. Okay. Now as I mentioned before, जो आपका बिजनेस है, let's say जो ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, यानी प्राइमरीली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो आपकी दो तरह की हो सकती है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन हियर, नॉट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम बिजनेस कहते हैं, जो मैंने आपको अभी अभी बता दिया, एंड दूसरी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बिजनेस वो ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका मेन मकसद क्या होगा, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट सीकिंग। एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देखो आपको उसके नाम से ही पता लग रहा है, ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इसका मेन मकसद होता है टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लोगों के लिए, की अच्छाई के लिए, की भलाई के लिए काम करें। ओके, दैट डज नॉट मीन कि ये कंपनी, सॉरी, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाती, दे डू अर्न अ प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन मकसद नहीं होता। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन मोर डिटेल इन कमिंग वीडियोस एज वेल। सो मूविंग फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट कि why organization is needed, हमें क्यों जरूरत होती है इस organization की, या what are the benefits of this organization, of when establishing an organization, why an organization. So why an organization? So I'm going to list out some points. Okay, number one, if I tell you guys कि भाई हमें क्यों एक organization की जरूरत होती है, तो the very first one you can say that capacity. Okay, what does capacity mean? Capacity mean that group of people will be preferred as compared to a single person. देखिए guys, कैपेसिटी जब, देखो ऑर्गेनाइजेशन जब बनेगी ना, तो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में था सोशल अरेंजमेंट।
सोशल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जब आप डिफरेंट लोग मिलकर आपस में काम करते हैं, तो देखो जब डिफरेंट लोग मिलकर आपस में काम करेंगे तो वो ज्यादा काम कर सकते हैं। इन टर्म कैपेसिटी को आप कह लो इन टर्म्स ऑफ साइज। ओके, तो साइज आपका बड़ा होगा कंपनी का, राइट। जब साइज कंपनी का बड़ा होगा तो डाइवर्सिटी आएगी। डाइवर्सिटी का मतलब है कि आप बहुत डिफरेंट तरीके का काम कर सकते हो। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि एक होटल में, ठीक है, एक 5 स्टार होटल में डिफरेंट शेफ्स होंगे। एक पेटिसरी शेफ अलग होगा, लेट्स से बेकिंग शेफ अलग होगा, लेट्स से सूप शेफ अलग होगा, जापानीज शेफ अलग होगा जो सिर्फ जापानीज क्यूजीन पे फोकस करेगा, चाइनीज शेफ अलग होगा जो चाइनीज शेफ क्यूजीन पे फोकस करेगा। सो जितने ज्यादा लोग मिलकर उस होटल के किचन में काम करेंगे, ऑब्वियस बात है उतना ही उस होटल के मेन्यू का साइज बड़ा होगा, वो होटल का साइज बड़ा होगा, एंड उतना ही उस होटल के मेन्यू में डाइवर्सिटी आएगी, राइट। सो आई होप यू guys would understand this. Number two, there is a word that is known as synergy. साइनर्जी को मैं कैपेसिटी के साथ ही रिलेट करूंगा। साइनर्जी का सिंपल मकसद, अगर सिंपल मतलब अगर मैं आपको एक इक्वेशन से समझाऊं, सो दैट इज 1 + 1 = 3। If you guys remember in your childhood, you might have studied such kind of stories where हमारे हमारी जबान में एक प्रोवर्ब है जो हम यूज करते हैं कि एक से भले दो, राइट, एंड दो से भले तीन। सो साइनर्जी इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जब एक बंदा यानी दो इंडिविजुअल्स मिलकर काम करते हैं तो दे विल अचीव मोर एज कंपेयर टू वो जब इंडिविजुअल बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, दो लोग देखो, कैपेसिटी में भी आई जस्ट एक्सप्लेन यू गाइस द सेम थिंग कि जब ज्यादा लोग मिलके काम करेंगे तो दे विल अचीव मोर। इसको साइनर्जी भी कहते हैं, एंड साइनर्जी का जो एग्जैक्ट मतलब है दैट इज कि व्हेन टू इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर दे विल अचीव अ लॉट मोर एज कंपेयर टू व्हेन दे वर वर्किंग एज इंडिविजुअल्स। ओके, फिर उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो नंबर थर्ड पॉइंट में हमारे पास जो है वो आ जाता है स्पेशलाइजेशन। अब ये कैपेसिटी की ही वर्ड्स को मैं थोड़ा सा इनहांस कर रहा हूँ। ठीक है, द वर्ड कैपेसिटी इज अ वेरी लार्ज वर्ड। नाउ स्पेशलाइजेशन, अगेन आई एम गोना गिव द सेम एग्जांपल ऑफ द होटल कि देखो होटल में जापानीज शेफ भी है, चाइनीज शेफ भी है, एंड पाकिस्तानी शेफ भी है, right? So all these three chefs will be, will be expert in their relevant cuisines. So अब लेट्स से एक होटल है और उसको डिफरेंट क्यूजीन्स चाहिए तो वो डिफरेंट शेफ्स को हायर करेगा। अब एक पाकिस्तानी शेफ जापानीज क्यूजीन नहीं बना पाएगा, नाइदर ये जापानीज क्यूजीन कैन मेक अ पाकिस्तानी क्यूजीन, राइट। और हमारे खाने तो माशाल्लाह से वर्ल्ड फेमस है, राइट। सो एंड दैट्स अ रियलिटी कि पाकिस्तानी खाने और दे आर मेजरली कंफ्यूज्ड विद इंडियन क्यूजीन। सो अब बोथ क्यूजीन्स आर वर्ल्ड फेमस, ओके। इनका अपना ही एक जो है ना दुनिया में लेवल है, लाइक वेयर एवर पाकिस्तानीज आर इन द वर्ल्ड, they will always prefer their own cuisine, and their cuisine is always preferred by the foreigners, राइट। सो स्पेशलाइजेशन में आपको बता रहा था कि हर बंदा एक स्पेसिफिक चीज में स्पेशलाइज होगा। इस मुझे एक एग्जांपल याद आ गई कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर हर चीज को नहीं देख रहा होता। अब देयर विल बी अ सेपरेट डॉक्टर फॉर योर हार्ट, राइट। कार्डियोलॉजी का डॉक्टर अलग होगा, न्यूरोलॉजी का डॉक्टर अलग होगा, सिमिलरली गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अलग होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट होगा, right? So every doctor will have a specialization just where they will work. Then उसके बाद number 4 we have resources. Now, if I'm talking about specialization, so every doctor will bring in some resources. अब रिसोर्सेस का हरगिज मतलब एंड लिमिटेड मतलब ये नहीं है कि दे विल ऑलवेज ब्रिंग इन कैश और दे विल ऑलवेज ब्रिंग इन बिल्डिंग्स। रिसोर्सेस इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस भी हो सकती है, इंटेलिजेंस भी हो सकती है, इंटेंजिबल रिसोर्सेस भी हो सकती है। देखो, एक डर्मेटोलॉजी यानी स्किन डॉक्टर जो है, he or she is going to bring their own knowledge about skin diseases, about skin treatments,
राइट। सिमिलरली एक जो कार्डियोलॉजी का जो कार्डियोलॉजिस्ट जो होगा, जो हार्ट डॉक्टर होता है, ही और शी इज गोइंग टू ब्रिंग different techniques to, for the heart operation and something like that. So जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो वो रिसोर्सेज भी बिल्ड इन करते हैं। हमारे बचपन में होता ये था कि whenever we used to party, so हम क्या करते होते थे, इवन आई रिमेम्बर कि when I was in school and हमारी जब ईद मिलन पार्टीज होती थी, इवन आजकल भी ईद मिलन पार्टीज होती है, बट द ट्रेंड हैज चेंज। आजकल you are get invited in a hotel and blah blah। so हमारे उस टाइम पे ये होता था, and when I say हमारा टाइम, तो that does not mean कि I'm talking about the 90s, I'm a young guy, okay? So I'm as young as you guys are, so do not think that I'm old and I relate to 90s. So but do not think of that, never and ever, okay? So when I was young, like around 8 9 or 10 maybe, so whenever we had Eid Milan party in our school, so होता ये था कि हमें जो हमारी जो मैम होती थी, जो टीचर होती थी, शी यूज्ड टू से कि आप में ना हर स्टूडेंट ने एक एक डिश ले आनी है, राइट? सो होता क्या था कि ईद मिलन पार्टी में, लेट्स से वी आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो हर स्टूडेंट एक एक डिश ले आएगा। सो अ टोटल ऑफ देयर विल बी 30 डिशेस, जो बहुत ज्यादा हो जाता था, राइट? सो दिस तो जब 30 डिशेस वर ऑन द टेबल, सो इट वाज लाइक कि एक शादी का माहौल बन जाता था, राइट? सो द सेम मीन इज ऑफ द रिसोर्स, कि जब डिफरेंट लोग मिलकर काम करेंगे तो हर बंदा अपनी अपनी एक कोई ना कोई रिसोर्स लेकर आएगा। एंड रिसोर्स नॉट ऑलवेज इज लिमिटेड टू कैश, यस इट इज ऑल्सो कैश एज वेल, बट कैश से बढ़कर भी there are different type of resources. All right, so I hope you guys will now understand that why organizations are important. So they have a number of advantages. Now, reduced risk is divided, or you can say risk is classified over the entire group. तो होता क्या था कि सॉरी, होता क्या है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो ना, ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, तो हर बंदे पर रिस्क डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल, अगेन मैं वो उस पार्टी की एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ। देखो, 30 डिशेस हमारे पास आ गई थी। उन 30 डिशेस में से अगर एक दो डिशेस अच्छी नहीं भी हैं, तो वी विल बी हैविंग ऑप्शंस टू स्विच टू अदर डिशेस, राइट? सो सेम हैपेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर लेट्स से एक बंदे ने गलती की है, सो उसकी गलती को सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ अदर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको लॉस हो गया है एंड 10 लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, तो वो जो लॉस है वो 10 लोगों पे डिवाइड होगा। फिर हर पर्सन के हिस्से में जो लॉस आएगा वो रिड्यूस्ड अमाउंट का होगा, राइट? सो दिस इज हाउ आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प आउट करती है। एंड दीज वर ऑल द, यू कैन से, एडवांटेजेस, और यू कैन से दीज वर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं हाउ ऑर्गेनाइजेशंस डिफर। इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफरेंट होगी। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन सेंस टॉपिक। तो लेट मी जस्ट क्विकली राइट। देखो, साइज के लिहाज से वेरी करेंगी। अब आप नेस्ले का साइज देख लो, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, और आप पाकिस्तान की किसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, विच व्हाट एग्जांपल शुड आई गिव, लेट्स से पाकिस्तान में सुनहरी बैंक देख लो, इट्स रीजनल बैंक, राइट? तो सुनहरी बैंक नेस्ले के मुकाबले इट्स अ टोटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट्स अ टोटली, यू कैन से, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू नेस्ले। तो साइज की बात हो गई। दूसरा, देयर स्ट्रक्चर।
नाउ स्ट्रक्चर की बात क्या है, देखो नेस्ले का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। नेस्ले में हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, नेस्ले में हो सकता है कि आपके सब डायरेक्टर्स हों, आपके सीईओ होगा आपका, देन आपके चीफ्स होंगे, देन मैनेजर्स होंगे, सब मैनेजर्स होंगे, आपके एसोसिएट्स होंगे। हो सकता है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में देयर विल बी जस्ट वन पर्सन और वही सब कुछ देख रहा हो, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशंस आपके स्ट्रक्चर की बेसिस पर भी डिफर कर रही होती हैं। साइज हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एंड देयर यू कैन से दैट व्हाट इज देयर एम टू अचीव, और व्हाट इज देयर एम, व्हाट इज देयर रीजन टू एग्जिस्ट, क्यों वो एग्जिस्ट कर रहा है। हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों की भलाई के लिए एग्जिस्ट कर रहा हो, वेलफेयर के लिए, एनजीओ जिस तरह होती हैं, या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, राइट, जिस तरह ईदी फाउंडेशन है, उसकी एग्जिस्टेंस का रीजन टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू, अगर हम बैंक अल्फला की बात करें या एज कंपेयर टू हम नेस्ले की बात करें, राइट। तो ये वो तमाम रीजंस हैं कि जिन पर या जिनकी वजह से एक कंपनी या नॉट कंपनी सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन डिफर करती है। देन वी हैव ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है कि कौन बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, ठीक है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ओनर है वो अलग ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक से ज्यादा ओनर्स है तो वो अलग ऑर्गेनाइजेशन होगी, राइट। फिर अगेन इसमें फिर ये बात आ जाता है कि अच्छा वो जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो एक प्राइवेट बंदा ओन कर रहा है या क्या वो गवर्नमेंट ओन कर रही है, ठीक है। तो इनमें ये तमाम बातें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। फिर इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो दैट इज फंडिंग। आप सब लोगों को पता होगा, एंड यू माइट हैव स्टडीड इट समवेयर इन योर प्रीवियस चैप्टर्स, प्रीवियस सब्जेक्ट्स एज वेल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट तरह की फंडिंग्स मिलती है। फंडिंग में इफ आई स्टिल रिमेंबर डिस्कसिंग दिस थिंग इन वन ऑफ माय क्लासेस, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इक्विटी फाइनेंस भी हो सकती है, एंड एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेट फाइनेंस भी हो सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दोनों फाइनेंस से भी चल सकती है। तो फिर फंडिंग भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंशिएट करेगी कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी फाइनेंस्ड है या ये डेट फाइनेंस्ड है या ये बोथ फाइनेंस्ड है, ठीक है। फिर नंबर 6, आप कल्चर की बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, फॉर एग्जांपल बैंक का कल्चर है कि यू शुड ऑलवेज ड्रेस नाइसली, यू शुड ऑलवेज लुक फॉर्मल, एंड यू शुड ऑलवेज बी इन अ सूट, राइट। बट एक उसके लिहाज से अगर हम एक स्कूल की बात करें तो स्कूल का अलग कल्चर है, स्कूल इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, दे विल बी हैविंग यूनिफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स। एक फुटबॉल टीम जो है वो it is also an organization, right? You guys might think why or how and football team is an organization. So see, football team में different लोग मिलकर काम करते हैं, they have a collective goal, and वो कुछ rules and regulation को follow करते हैं, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट मीन कि आप एक एक बाउंड्री वॉल हो आपकी, या आप एक बिल्डिंग में ही एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकते, नो। if even a group of friends are working together to achieve a goal, so they are also making an organization, ओके। तो दीज आर ऑल द रीजंस जिसकी बेसिस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होती है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन अबाउट बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट what type of the business organizations there are, and we are going to discuss in detail about not-for-profit organizations as well. So if you guys have any question regarding this lecture, so do let me know via feedback or over my WhatsApp. Until then, take care. Have a good day. Bye.